is developed in the subject. The kind of analysis that you do when you are studying physics, the kind of approach that you follow to understand physics, that always helps you in life. In real life examples, I have seen many people who are good in physics and they have managed their life very properly. What I am saying is not that like you will become very rich. That is a different issue. But the thing is that you can manage your life very properly. If you have good skills in physics, you will improve in every sphere of your life. Some of the basic examples that we'll be discussing today, and those examples are very, very interesting examples along with the basic concept that is related to them. We will be discussing the concepts also along with experimentally we will show some of the very interesting things. You people all will be enjoying it. See, generally what we do is in the classroom we take the subject, we discuss the subject, but most of the time it is not possible to arrange for these kind of activities. But today I am very thankful to Mr. Badhara. Good morning, students. First of all, I would thank Director Sir, Howard Sir, Principal Sir and all the staff members that I got an opportunity to interact with you, to discuss the physics with you. So my subject is physics. So I am a keen, not teacher in physics, I am a keen student of physics. Because physics there is no limit of it. So you see, whatever you see around, physics is involved everywhere. I can use Hindi or English. Are you comfortable with both? Yes. So physics plays an important part in our life. I call it physics is a prediction. We can predict in advance that if I will throw a ball, where it will fall. We can calculate it in advance. Like we are launching the satellites, we are controlling them from remote. So physics is a prediction. We can predict. For that we must understand the rules and regulations, and that are known as principles behind the concept, principle of physics. So with the help of small activities, I have many activities, at least 20 to 25, and the list is limitless. There are many phenomena, many topics we can discuss about that. So as for how much time I will get? Approximately 1 hour. So 1 hour we will be interacting with you, and I hope this should not be a one-way conversation, one-way traffic. It is an interaction, it is a two-way. You can ask the question, I will ask the question from you also, and you can ask your doubts. First, observe the things carefully. The students who are interested to do something in their life, the first condition is they should be an keen observer. As you know, I belong to the same village, and my son was very fond of physics. So while cracking the exam recently, most of you might be knowing, he cracked the civil service exam and his main subject was physics. And that subject, because that was in his blood, that's why he did not waste too much time on studying the physics. He prepared for GS topics, GS, others, geography, history, all these, and he was easily able to crack that. So first set your target, what you want to win your life. Before you want to achieve that long target, you have to achieve the short target. And short target may be of 1 week, maybe of 1 month, and today short target is just this 1 hour. In this 1 hour, you have to be focused. Your attention should be here. Mentally, we can visit anywhere in the world. If I ask you, visit your home,
while sitting at this place, you can visit your home. Physics is an mental imagination. Mentally, if I say that this is a ball, ball दिखाई नहीं देगी, आपको दिखाई देनी चाहिए. You can imagine it कि ball कैसी होती है, you know. Now visit to your kitchen. Can you see your kitchen? Mind में दिख सकती है ना kitchen. This is the imagination. In 11th class, there is a concrete physics. We can see the things easily. Like, लेकिन in 12th में जैसे electricity है, optics है, there is abstract physics. So without wasting time, I start. Should I start? Okay. So I will request the staff members, please better help me here, so that otherwise I will feel that staff members feel tired. So better take chairs. I want you to be comfortable. Okay. So students from class 9 or I will ask several questions. What is this? Can you tell the shape of this? Sphere. Sphere. What is the shape of this? Okay. You know the difference between circle and sphere? What is the difference? 3D and 2D. Okay. It occupies some volume. It has some surface area. What is the surface area of this sphere? If radius is r, what is the surface area? 4 pi. What is the volume? This is just the testing. Just like when aeroplane fly, तो उससे पहले check होता है ना सारा, all engines, everything is okay. So I am just checking just. Okay. So you know very well volume, area, everything you know. Okay. So what is the shape of this? It is hollow or solid? Hollow. What is the surface area of this cylinder? If height is h, radius is r? No. I have asked the surface area, not volume. So this is the focus. But you have to be keen. You have to focus your mind. What is asked from you? क्या पूछा आपसे? मैंने पूछा surface area. आपने बता दिया पाई r square h क्या है इसका वॉल्यूम. बेस एरिया इनटू हाइट. तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 2 pi r h. Okay. Do you know how aeroplane fly? Can we go to moon with the help of aeroplane? Am I audible to the last student sitting? Okay. Can we go to the moon with the help of aeroplane? Yes or no? Reason? Because air is required. So it means air helps in propelling the aeroplane. If I take this is a tennis ball. If I release it, it falls down. Aeroplane is very heavy and it is taking the 1000 passenger at a time. Why it is not falling? What is the reason? What is the principle behind the flying of aeroplane? Streamline. So basic principle, just like who invented electricity? Who invented electricity? Benjamin Franklin. Who invented aeroplane? Wright brothers. But what is the principle behind flying of aeroplane? 11th में भी आता है Bernoulli's principle. Bernoulli's law. Have you heard about it? You can note it down. What is the principle of flying of aeroplane? Write down Bernoulli's principle. This is Bernoulli's principle. Now in this room, in this hall, I will make you understand how aeroplane fly. Okay, written? Now, any student can come to me, you please come. What's your name? Kusal. Kusal is with me and he will help me. You can see what is this? This is a funnel. If I put this tennis ball in it and if we blow the air, Kusal will help me. You have to blow the air
air from the mouth of the funnel and try to move it away. यहाँ से इसको बाहर निकालना है. Try please. Try as it is not flying. उड़ नहीं रही है. Okay. Okay. If any of you will try, it will not fly. जितना ज्यादा जोर लगाओगे उतना चिपकेगी इसके साथ. अब मैं इसको अदर वे करता हूँ. I invert it. I invert the position. Will it fall down? Yes, falling down. If I blow the air, it will fall faster or slower? Faster. This is the misconception. This is the misconception. I will remove this misconception. Okay, I am doing this. 1 minute. The moment we are giving the stream of the air, it will not fall. So far as air continues moving across it, it will not fall. Read. I can try it again. Okay. So this is the principle on which aeroplane fly. This is not falling down. Now I explain on the board. Okay. So this is the funnel. And this was the ball. Initially what happened? This ball due to gravity is there 9.8 meter per second square. You know gravity. That is, it will fall down. But if we blow the air from the mouth, from the top, like this, we are just blowing the air. What happens? There is a gap is created. A little bit. Okay? Initially कोई भी फोन नीचे स्टार्ट करेंगे तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा. और वो जो स्मॉल गैप है, the air will run faster from this gap. यहाँ से air बड़ी फास्ट स्पीड से आएगी. और फास्ट स्पीड से आएगी तो this is faster. Air speed increases, pressure decreases. You know the pressure? What is pressure? Force upon area. If you want to understand pressure, suppose you are 6th, 7th class student, you can understand easily. I am placing this here. What is the pressure? Weight of this stick, wooden stick, divided by area. Now if I place it like this, it will exert more pressure or less pressure? More pressure. Okay. It means you know very well, pressure is nothing but pressure depends upon force as well as area. That is outcome, effect of force. If the same force is applied on a smaller area, we feel more pressure. Just like if I have this pen, if I put my finger on this tip, I will feel more pressure. If I put the same finger with the same force on this side, I will feel less pressure. So pressure depends upon area and force. You know very well. So here the speed increases, air pressure decreases. Air also has a pressure. For to visualize it or realize if the air has pressure, I will give you some other activity. I will demonstrate. Now see, here air pressure increases because speed decreases. यहाँ पे जो speed है वो कम रहेगी क्योंकि air did not move. यहाँ पे air ने move नहीं किया तो यहाँ पे pressure ज़्यादा है और यहाँ पे pressure कम है. So this will lift up. Why wind flows? Wind क्यों flow करती है? Why water flows? Due to height difference. Water high level से low level पे जाता है. Wind क्यों flow करती है? High pressure से low pressure. Heat क्यों flow करती है? High temperature से low temperature. मेरे पास ये स्केल है. इसको अगर मैं hot उसमें जैसे ओवन में डाल दूँ इधर से तो heat will flow to my hand. High temperature to low temperature. Electricity कैसे flow करती है? Electric current. Due to potential. We will come to that point also. We will generate electricity in this room. ठीक है? यहाँ पे electricity generate करके दिखाएंगे. तो यहाँ पे क्या है? Pressure difference के कारण इसमें exert किया. तो इसलिए जो है एरोप्लेन के केस में क्या होता है? जैसे बहुत अब एरोप्लेन तो है. Aeroplane has wings, but that wings has a particular shape.
not fall down. Now other examples in daily life. You go for haircut to the barber. ठीक है, वो आपको ऐसे ऐसे बालों में लगाता है ऐसे. तो यही चीज है मेरे पास. अब है okay, I fill water inside it. Okay, I have filled water. There is a straw. ये straw है. empty है अभी. इसमें क्या है? air है only. तो इसको मैंने इसमें dip कर दिया. Okay. अब मैं इसको press करूँगा. What will happen? लेकिन इनिशियली नहीं आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा. स्टार्टिंग में तो देखो अभी थोड़ा सा टाइम चढ़ गया इसमें. जैसे ही आप प्रेस करते हैं what happens, जो एयर जो स्ट्रॉ है उसकी जो एयर है वो आउटसाइड बाहर निकल जाती है. तो उस टाइम पे एयर इज अवेलेबल है. दैट एयर विल प्रेशराइज द वाटर एंड वाटर विल रन इनटू दिस. और उसी टाइम पे दोबारा फिर हम प्रेस कर देंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा. कंटिन्यूअसली एंटायर ट्यूब विल फिल विद वाटर. और उसके बाद प्रेस करेंगे तो वाटर विल कम आउट. अब इसी से रिलेटेड एक और चीज बताता हूं. ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल है. यहाँ पे स्प्रेइंग एक्शन इज आल्सो बर्नौलीज प्रिंसिपल. इसी से रिलेटेड मैं इसको ओपन कर देता हूं. अभी मैं इसको प्रेस करूंगा तो देखना इसकी स्प्रिंग देखो बहुत ही कम है. इट इज वेरी लेस. देखो बहुत आराम से वहीं पे गिर रहा है. ठीक है. अब मैंने इसके आगे ये चढ़ा दिया. इसमें क्या है? होल है, फाइन होल है. तो देखो अब देखो ये थोड़ा ज्यादा टाइट कर दिया तो बिल्कुल फाउंटेन बन गया. थोड़ा सा कम कर देंगे इसको. अगर इसको लूज या टाइट करता हूँ तो उसके अनुसार इसकी वो चेंज होती है. उसके अनुसार इसका चेंज होता है. तो देयर इज आल्सो वन फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? आई एक्सप्लेन इट. सपोज हमारे पास एक पाइप है एंड इट इज irregular in shape. Irregular means one end is wider and other is narrow. ये narrow है और ये wider है. तो यहाँ से अगर पानी एंटर कर रहा है तो यहाँ से निकलेगा. स्पीड कहाँ पे ज्यादा होगी? नैरो एंड में ज्यादा होगी. अब क्यों होगी? क्यों ज्यादा होगी? In your daily life you see when you sprinkle water in the garden, पानी जैसे तो आगे से जैसे दबाते हैं तो वो दूर तक जाता है. ठीक है. तो वही चीज यहाँ पे हो रही थी. अगर इसको मैंने डाल दिया नैरो तो ये दूर तक जा रहा था. तो उसमें क्या होता है? दिस इज एरिया ए. यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B2 है. दिस विल रिमेन कांस्टेंट. A1 B1 is equal to A2 B2. एरिया डिक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस. अब ये तो बुक्स में भी है बेटा. व्हाट इज द डिफरेंस? ये तो बुक्स में भी वो चीजें रखता. व्हाट इज द यूज टू अंडरस्टैंड इट हियर? यहाँ पे क्या डिफरेंस है? आई मेक यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट. वो कांसेप्ट क्या है उसको इस ढंग से समझो. अब ये तो आपने रट्टाफिकेशन कर लिया कि इंक्रीज होता है. टीचर ने आपको बता दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया बट रियलाइज नहीं किया क्यों होता है. उसके लिए आई टेक एन एग्जांपल. ठीक है. वो एग्जांपल थोड़ा सा आपने समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. उसके लिए ये हॉल है बहुत बड़ा. ठीक है. इट हैज टू गेट्स. दो गेट है, एक गेट और एक गेट. रेस्ट आर क्लोज. ओके. इसके अंदर ये बहुत बड़ा हॉल है. ये मैंने बता दिया. और यहाँ पे एक हॉल, यहाँ पे छोटा सा ओपनिंग और एक ओपनिंग यहाँ पे है. डोर को मैं ओपनिंग दिखा देता हूँ. दिस इज ओपनिंग. ये लास्ट वाला को दिख रहा है. दिस इज वन ओपनिंग, दिस इज अनदर ओपनिंग. अब मान लिया दिस हॉल इज कंप्लीटली पैक्ड. फुल है. एक भी इसमें एक्स्ट्रा बच्चा इसमें एंटर नहीं कर सकता. ठीक है. तो इट मींस अगर इसमें एक बच्चा हमने और एंटर करवाना है, व्हाट शुड वी डू? एक को बाहर निकालना पड़ेगा. तो वो कर जाएगा. अगर मान लिया इसके अंदर continuously student are assembling here continuously, 3 are coming and 2 are moving out. 3 अंदर आ रहे हैं, 2 बाहर जा रहे हैं. What will happen? It will be packed after some time. full हो जाएगा
बाद वो फ्लो स्टॉप हो जाएगा, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में हो जाएगी। तो इसके लिए प्रिंसिपल है कि जितने बच्चे आए उतने ही निकले, तो वो फ्लो कंटिन्यूअस रहेगा, वो आते रहेंगे निकलते रहेंगे और ये पैक रहेगा और लेकिन चलता रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी यही है, whenever there is a fluid, liquid flowing in a tube, the amount of water or liquid per second entering at one end should be equal to amount of water or liquid leaving the other end per second सेम, दोनों सेम होना चाहिए। अब एरिया को अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एरिया को इस हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है वॉल्यूम, और अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा एरिया इनटू डिस्टेंस क्या आ गया वॉल्यूम, और टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन टाइम। और a x by t क्या है, x इज योर डिस्टेंस और t इज योर टाइम या डिस्टेंस, दैट इज वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी डिपेंड्स कांस्टेंट। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, आपको स्पीड क्यों बढ़ती है, चलो ये तो फिक्स हो गया, ठीक है, जितना एंटर हो गया उतना निकल गया, लेकिन स्पीड क्यों बढ़ी, व्हाट इज द रीजन, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट, एनीवन गेस, कोई भी, स्पीड क्यों बढ़ी, रीजन बताओ। देखो यहां से एक जो स्टूडेंट है वो इस पोजीशन में एंटर कर रहा है, ये स्टैंडिंग है तो सीधा ऐसे एंटर कर जाता है, एक स्टेप, ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम, वो एक स्टेप अंदर हो गया, ठीक है। अब जो वहां दूसरा जो गेट है उससे जो स्टूडेंट कैसे बाहर निकलता है, वहां ऐसे दरवाजा नहीं है, वहां दरवाजा ऐसे लेट के निकल सकता है, इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन से बाहर निकल सकता आदमी, वैसे नहीं निकल सकता। तो मान लिया यहां पे यहां लेटा दिया हमने इसको ऐसे, ठीक है, तो जैसे ही इसने तो एक स्टेप आगे किया, जस्ट वन स्टेप, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर 1 सेंटीमीटर मूव किया इसने, तो इसकी स्पीड क्या होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब तक ये कंप्लीट नहीं निकलेगा तो इसका एक स्टेप हो नहीं सकता कंप्लीट, तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा। ही इज 6 फीट लॉन्ग, इसकी हाइट कितनी है 6 फीट, लेकिन इसको पूरा बाहर निकलने के लिए पूरे अपने आप को बाहर ले जाना पड़ेगा। तो उसी एक सेकंड के अंदर इस बॉडी विल मूव 6 मीटर, सॉरी 6 फीट। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई स्पीड इंक्रीजेस, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस। तो उसको पूरा कंप्लीट जाने के लिए उसको निकलना पड़ेगा। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट, ओके, आई हैव एन ओबीडिएंट दिस glass, it will obey my rule. What I will say, I will fill it with water. I have made some holes. इसकी बोतल पे मैंने होल कर रखे हैं, मैं इसको फिल कर लेता हूँ। ओके, अब मैंने ये ले लिया यहाँ पे, देखो water is not coming out. Why? अब रीजन बताओ इसका जल्दी। Air is available. एयर प्रेशर है उसने रोक लिया, ये कहेंगे ना एयर प्रेशर के कारण ये नहीं आ रहा, अब ये आ रहा है। अब कहां गया एयर प्रेशर, ये तो अभी भी थी, इट मींस समथिंग एल्स इज देयर। देखो ओबीडिएंट, ऑन, ऑफ, स्टॉप, स्टॉप, इट इज ओबीडिएंट। तो व्हाट इज देयर, देखो अब ये खाली हो गया इस तरह से। व्हाट इज द प्रिंसिपल, एनीवन कैन गेस व्हाट इज द रीजन, बताओ बेटा, हैव यू एवर थॉट क्या रीजन है। वाटर कैन कम आउट ऑफ दीस स्मॉल होल्स, यू हैव सीन, आई एम शोइंग यू वन मोर थिंग, व्हाट इज दिस, मोस्टली अवेलेबल इन द किचन ऑफ एवरी डोमेस्टिक हाउसहोल्ड, ठीक है। तो अगर इसमें मैं पानी डालूंगा तो क्या होगा, निकलेगा या नहीं, इसके ऊपर पानी डालूंगा तो निकलेगा, निकल रहा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर रख दूं तो क्या निकलेगा पानी, इसको उल्टा रख दूं, नेक्स्ट टाइम, साइंस इज जस्ट एक्सपेरिमेंटेशन, डू एंड सी। मैंने इसके ऊपर रख दिया, अभी ज्यादा क्या पता निकल जाएंगे, इसको हाफ कर लेता हूँ, ज्यादा वेट हो जाएगा ना, ज्यादा वेट होगा तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया तो फिक्स है इनका, तो ज्यादा वेट होगा तो निकलेगा फिर। तो मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ एंड आई इन्वर्ट इट, मैंने इसको उल्टा कर दिया। Now I remove my hand, you can see it is not coming out। तो यहाँ पे देखो, अब किसी को सोचे कोई भी
भाई उसमें कुछ अलग था, ये सेम सिचुएशन है, यहाँ भी नहीं निकल रहा और वहां निकल रहा था बीच में, लेकिन समटाइम्स निकल रहा था, समटाइम्स नहीं निकल रहा था। किसी टाइम पे निकल रहा था, किसी टाइम पे नहीं निकल रहा था। तो क्या सिचुएशन है इसमें? अगर हो सकता है इसमें वेट कम है तो लेट्स ट्राई विद फुल वेट, इसको फुल भर के ट्राई करते हैं। इसमें सिचुएशन देखते हैं विद इट डिफर, तो मैंने इसको रख दिया, इसको उल्टा कर दिया। अब की बात पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। इट इज नॉट कमिंग आउट, इट मींस एयर प्रेशर इज नॉट द रीजन। ठीक है, ये तो वेट बढ़ गया। अगर वेट बढ़ता है तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। यू नो इक्विलिब्रियम, फिजिक्स के अंदर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? मान लिया यू हैव समथिंग हियर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। आई एम प्लेसिंग इट ऑन माय हैंड, अब बताओ इस पे कितना फोर्स काम कर रहा है? व्हाट इज द फोर्स, नेट फोर्स ऑन दिस वुडन स्ट्रिंग? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस वुडन स्ट्रिंग? आंसर is 0, ठीक है। इफ somebody ask you how many forces are there, तो 0 नहीं होंगे, there are 2 forces। पहला फोर्स कौन सा? ग्रेविटी। एंड सेकंड फोर्स कांटेक्ट फोर्स, इसके और इसके बीच में कांटेक्ट फोर्स, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट फोर्स में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कांटेक्ट फोर्स में भी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और नेट कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा फिर। अभी इस दे रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, बेटा यही चीजें समझने की है। अब मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ। इज देयर एनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? यस। इज इट इन इक्विलिब्रियम? अब बताओ इस पे कितना फोर्स है? नेट फोर्स अगेन 0, नेट फोर्स इज अगेन 0, लेकिन यहाँ पे mg sin theta is trying to take it downward, force of friction is preventing it। क्या यहाँ पे force of friction mu n है? 11th class student might, how many 11th class student raise your hands? 11th forward only, 11th 12th, okay। I am asking this question from you। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे टेप किया, इट इज नॉट फॉलिंग डाउन। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है? इज इट F is equal to mu n or else? Force of friction is equal to applied force unless the body moves। जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी तो इसमें mg sin थीटा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि mg cos थीटा का तो नॉर्मल रिएक्शन में कैंसिल आउट होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल रिमेन mg sin थीटा until the body actually। तो ये तो फ्रिक्शन की बात थी। तो मैं जो डिस्कस कर रहा था यहाँ पे इक्विलिब्रियम की पॉइंट डिस्कस कर रहा था। तो इसके ऊपर जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड फोर्स होगा, then the body will not fall down। अगर ऑलरेडी रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे रहेगी। What is Newton's first law? ऑफ इनर्शिया तो है, लेकिन है क्या वो? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे है नहीं। अगर कोई स्टूडेंट ये लिखता है बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन, दैट इज रॉन्ग डेफिनेशन। उसमें अगर यूनिफॉर्म मोशन यूज करोगे दैट इज राइट डेफिनेशन। इफ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन में तो होती है, ठीक है। जैसे मान लिया कोई ट्रक जा रहा है, मूव कर रहा है, फोर्स तो उसमें भी लग रहा है। तो नेट जो फोर्स है जब तक 0 होगा उसकी ना डायरेक्शन चेंज होगी ना उसकी स्पीड चेंज होगी, नथिंग विल चेंज। रोलो। तो अगेन कम टू द पॉइंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट यहाँ पे ये बॉडी की जगह वाटर ले, अब वाटर में भी तो ग्रेविटी है डाउनवर्ड और नीचे से एयर थ्रस्ट है। अब एयर थ्रस्ट मैंने ये ले लिया एयर के कारण, अब मैंने इसका वेट बढ़ा दिया, इसमें हाफ से इसको फुल कर दिया, तो आई हैव इंक्रीज दिस mg को इंक्रीज कर दिया। एयर का तो सेम है भाई, एयर का जो थ्रस्ट है देयर इज नो चेंज इन द एयर प्रेशर यहाँ पे अभी, ठीक है। एयर प्रेशर चेंज नहीं है,
कारण वो सरफेस टेंशन एक एक्स्ट्रा फोर्स दे रहा है और उसके कारण ये नहीं दे रहा। सरफेस टेंशन की वजह से you can float a needle on the water surface. नीडल को ऊपर से छोड़ते हैं पानी में डूब जाए और ऐसे फ्लोएट ऐसे आराम से उसके ऊपर रख देंगे तो वो डेड ड्यू टू सरफेस टेंशन। समझ आया? What is this? Eagle. Okay. This beak of the eagle will rest on the tip of my finger. देखो, it is not falling down. What is this? Why it is not falling down? मैं इसको पुल करता हूँ नीचे, again वापस आ जाती है. What is the reason? To understand this concept, I would again ask Kushal. I will again request Kushal to please come here. You sit on this chair. Okay. You know what is horizontal, what is vertical? This table top is horizontal or vertical? Okay. This wall is vertical or horizontal? What is the plane of this board? It is neither horizontal nor. What is the plane? This is inclined. Okay. Now I will request Kushal to keep his legs vertical. Vertical. ठीक है? Okay, is vertical. Body is also vertical. Straight, बिल्कुल. ठीक है? Now he will stand before you. खड़ा होगा कुर्सी से ये. लेकिन कंडीशन क्या है? He should not bend forward. आगे नहीं झुकना. तो Kushal, you are not permitted to move forward. ठीक है? और आपने उठना ट्राई करो. No, आपने आगे नहीं, बैंड नहीं होना बेटा, सीधा आगे सेट यहाँ हाथ रखो और सीधा हो, बिल्कुल सीधा. आप बैंड नहीं होना. Neither legs nor your body. Neither legs पीछे दिखानी चाहिए. Legs वही रहेंगे और आप ट्राई करो. Even none of the कितना भी muscle man or no one can be able to stand. कोई नहीं उठता है. You can try sitting at your place. आप ट्राई कर सकते हो. I am going to explain the principle और reason क्या है. See, यहाँ पे क्या था? This was the situation. ये legs का contact यहाँ पे और ये इसका back है यहाँ पे chair का. और ये इसका जो एरिया था, अब इसकी जो पूरी बॉडी थी, बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस जहां पे नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स. देखो इसके ऊपर दिस मार्कर हैज ए मास, रेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर. यहां भी मास है, एवरीवेयर मास इज देयर. और जहां भी मास होगा तो ग्रेविटी होगी. व्हाट इज द फार्मूला फॉर ग्रेविटी? mg. फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? वेट mg. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड. उसके लिए फील्ड के लिए g लेते हैं और वेट के लिए mg लेते हैं. और उसको मेजर करना हो तो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस होती है. I think I have spring balance also right now not available. Okay. तो यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ भी लग रहा है यहाँ, तो इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो सेंटर पे एक्ट कर रहा है. If it is regular. Okay. तो in this situation what happened? This was the position. Mass is distributed here. Head का mass, back, ये buttocks, ये सारा जो legs, इन सब का जो सेंटर ऑफ जो नेट फोर्स होगा वो कहीं यहाँ यहाँ. और इसको कैंसिल करने के लिए फोर्स कहाँ से मिल रहा था हमें? ओनली फ्रॉम लेग्स. कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ लेग से मिल रहा था और लेग से जो फोर्स मिल रहा था वो अपवर्ड था और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड था. अगर दोनों एक लाइन में होंगे तो कैंसिल करेंगे. समझ रहे हो मेरी बात? अगर दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा तो दे विल कैंसिल आउट. थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी ए रोटेशनल मोशन. देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोशन, लीनियर एंड रोटेशनल. अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, देखो ये बैलेंस है, इट इज नॉट रोटेटिंग. और थोड़ा सा भी अगर साइड में लगाता हूँ मैं यहाँ पे, देखो नीचे ऐसे रोटेट कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास से अगर थोड़ा सा भी साइड में कर रहे हैं तो रोटेट कर रही है यहाँ पे.
लेफ्ट साइड जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी लाइन में नहीं आएगी वी कैन नॉट स्टैंड अप। तो इसने क्या किया, अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लाइन में लेकर यू हैव टू बेंड। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी बेंड फॉरवर्ड, टू ब्रिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द कॉन्टेक्ट। Okay, so this is the reason and this was the reason why this eagle is parallel. ये आपने इसलिए गिर नहीं लगी क्योंकि जो इसका जो मास है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है व्हील्स के अंदर, ये थिक है काफी, ठीक है, इसे काफी थिक है, यहाँ पे मास को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सेंटर ऑफ मास जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे है, नेट फोर्स यहाँ पे है। नाउ वी कम टू सम अदर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट्स। ओके, bad conductor of electricity or good conductor of electricity? Why bad? क्यों bad है? This is good conductor, this is bad conductor. Reason क्या है? What is the reason? Electrons are there or not? इसमें electron है या नहीं है? है, but we cannot see the electrons. Electrons are available, but that are bound. That electrons are bound, not movable. When charge flow, it becomes the current. You can. So now I will do one thing. I will rub this plastic rod with some cloth. Okay, cloth I don't have. I can use my hand, no problem. So I will rub this plastic pipe with the help of this cloth. Empty. So you will see what will happen. And I have this empty can. This is empty, and I am placing it here. Okay. I will rub it. फिर से इसको रब करता हूँ, जब तक ये मैं रब करता रहूँगा। By the time you tell me how many types of material in this universe? बताओ, how many types of materials? Solids, liquids. What is the basic unit of every material? What is the basic unit? Atom. Atom, you call atom. Atom means, what is atom? Why atom? TOM means, tom means cut करना. Atom जिसको कट नहीं करते, कट तो नहीं कर सकते हम एटम को, बट उसके अंदर झाँक सकते हैं एटम के अंदर. What is inside the atom? क्या होता है बताओ? Electrons, protons, and neutrons. What is the charge of neutrons? No charge. How many kinds of charge in this world? Name. What is the charge of electron? What is the unit of charge? Coulomb. How many coulombs of charge is there on electron? Yes, really. You are fortunate enough that Fogart sir has selected this village Bhavatpur to give quality education to my village students. So, give clap for Fogart sir. Also, and many more will cover, but condition is when you will be curious to know, you will learn something. If you are willing to learn, you are determined to learn, nobody can stop you. If you are unwilling to learn, nobody can help. Okay, so this is charge. But I don't know how many electrons have come from my handy or this plastic rod or from plastic rod. I don't know electrons किस साइड गए, but surely electron गए, या तो इधर से इधर या इधर. Suppose electron has gone from plastic rod to this handy,
what is the charge on this plastic rod? Positive. I am bringing it closer to it. Okay, it is moving. It is moving. Okay, this is electricity generated. Electricity is generated, but this is not the electricity which the fan is helping the fan to run. वो electricity नहीं है ये static electricity है. Charge is at rest यहाँ पे. चार्ज अगर मैं इसको प्लास्टिक रोड की बजाय ग्लास रोड यूज करता, क्या ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता मेरा? बताओ बेटा. If I would have used glass rod instead of plastic rod, क्या ये सक्सेसफुल होता है एक्सपेरिमेंट? नहीं होता. रीजन, चार्ज flows through good conductors. Our body is a good conductor. वो चार्ज प्रोड्यूस तो हो रहा था, साथ साथ मेरे हाथ में चला जाता. तो चार्ज इसके ऊपर स्टे कर रहा है. तो चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? फर्स्ट मेथड, नोट डाउन. फर्स्ट मेथड, फ्रिक्शन. हाउ चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड? बाय फ्रिक्शन. फर्स्ट मेथड इज फ्रिक्शन. अब चार्ज प्रोड्यूस तो कर लिया हमने, ठीक है, वी हैव प्रोड्यूस्ड द चार्ज. लेकिन अगर मैंने इसको टच कर दिया तो वो चार्ज मेरे हाथ पे आ गया, तो बॉडी पे प्रोड्यूस हो गया. तो सेकंड मेथड इज कंडक्शन. सेकंड इज कंडक्शन. सेकंड कंडक्शन से, और मैं जब इसको इसके नजदीक लेके गया तो चार्ज इसमें भी आ गया था, इसमें भी चार्ज आया था ना. लेकिन इसमें कितना चार्ज था टोटल? टोटल चार्ज वाज अगेन जीरो. इसमें कोई चार्ज नहीं था. लेकिन लोकलाइज क्या था? चार्ज एक साइड, जैसे इस पे मान लिया पॉजिटिव चार्ज था, इस पे इसके नजदीक लेके आया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसने पुल किया. आई एक्सप्लेन इन नोट फॉर पार्ट था. जैसे मान लिया ये कैन है, ठीक है, मैं इसके पास ग्लास रोड ये प्लास्टिक रोड लेके गया, इट वाज पॉजिटिवली चार्ज. प्लास्टिक रोड पे पॉजिटिव चार्ज था. व्हेन आई ब्रॉट इट इन कांटेक्ट नहीं किया मैंने, इसको स्पेस डिस्टेंस था. व्हाट हैपेंड? It attracted the, unlike charges attract each other, it attracted the electrons available with this can. वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंसेप्शन हो गए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और far away पे पॉजिटिव चार्ज. लेकिन इक्वल होंगे हमेशा. जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज. टोटल चार्ज कैन बी जीरो. नाउ Coulomb's law. When charges are placed closer, the force of attraction or repulsion will be more or less? More. When charges are far away, the force of attraction or repulsion will be less. तो ये जो कैन है, यहाँ पर बता रहा था ये, इसके ऊपर कितने फोर्स काम करेंगे? ये मूव क्यों किया इसने? न्यूटन ने तो कहा था बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट करनी चाहिए, लेकिन इसमें मूव ये क्यों किया? जबकि चार्ज भी इक्वल है. अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज भी इक्वल है, उसके बाद भी मूव कर गया. रीजन आई टेल यू, इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसको मैंने नाम दे दिया F1. इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, लाइक चार्ज रिपेल्शन. अब इस रोड से विच चार्ज इज क्लोजर? नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर. कूलम्ब्स का समझ आ गया क्या है? Coulomb's force is inversely proportional to square of distance. तो ये force जो है ज्यादा है, F1 is greater than F2. अब 11th के स्टूडेंट समझ लो ध्यान से. If there are two forces acting on a body, if both are equal and opposite, net force is zero. Body will be in equilibrium. Was it in equilibrium now? क्या equilibrium थी इसमें? नहीं, equilibrium disturbed. क्योंकि ये F1 is greater than F2, the body will move towards the force which is greater. Very simple. So this is the reason why electricity is generated in the sky. Clouds के अंदर you see in your daily life, clouds में कितनी electricity, कितने हजार. अब वो क्यों generate होती है? Because clouds rub against each other. तो first method is friction. अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी? चार्ज तो है
जहां पे पॉजिटिव चार्ज है हम कहेंगे हाई पोटेंशियल, जहां पे नेगेटिव चार्ज है लो पोटेंशियल। नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द ग्राउंड ऑन व्हिच वी आर स्टैंडिंग? जीरो। अब सारा जो अर्थिंग, हर अप्लायंसेस की अर्थिंग करते हैं, चार्ज सारा उसमें जा रहा है, तो जीरो क्यों है? व्हाई इट इज जीरो? चार्ज तो है इसके ऊपर, लेकिन इतने ह्यूज साइज है इसका, दिस इज अ बिग कंडक्टर, बड़ा वास्ट अंदर वो चार्ज बिल्कुल ऐसे इतना वास्ट स्प्रेड हो जाएगा। जहर को भी अगर आप डाइल्यूट करोगे तो उसके बाद उसका असर खत्म। इतना चार्ज अगर वो स्प्रेड हो गया तो वी आर सेफ, नो प्रॉब्लम। तो आवर पोटेंशियल है जीरो। उससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो हम हाई कहेंगे और कम होगा तो लो कहेंगे। तो कम वाले को माइनस में और ज्यादा वाले को प्लस में। अगर मैं इस चार्ज को अब अपॉर्चुनिटी दे दूं मूव करने की, इफ आई गिव दिस चार्ज टू मूव, यहाँ पे चार्ज है, करंट नहीं है, इज देयर एनी करंट? करंट नहीं है, ये करंट का सोर्स है। तो इन फ्यूचर यू कैन कॉल बैटरी इज ए सोर्स ऑफ करंट। अब ये कैसे सोर्स है? क्योंकि इसके पास टू टाइप्स टर्मिनल है, एक हाई पोटेंशियल पे दूसरा लो पोटेंशियल। जैसे इधर डैम है और इधर सी है, तो डैम से पानी सी की तरफ अपने आप जाएगा। तो मैं चलो इसको अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आई गिव दिस अपॉर्चुनिटी। आई हैव a very small instrument, this is known as galvanometer. You know, you use it, galvanometer. What is the purpose of this instrument? To detect, no. It is not used to measure current, it is used to detect current. Only detect करता है कि करंट है या सर्किट में नहीं। मेजर करने के लिए एमीटर, ठीक है, we can convert it into ammeter, that is another thing. तो इसके हम करंट डिटेक्ट करते हैं, तो देखते हैं इसमें करंट है या नहीं है। I show you. Okay, so I am plugging in. ये जैसे मैंने इसको प्लग कर लिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया। रेड, यू नो ये रेड ब्लैक क्या होते हैं पता है? रेड मीन्स हॉट के लिए होता है, ब्लैक मीन्स न्यूट्रल वायर, और एक ग्रीन कलर की भी वायर होती है अर्थिंग। अर्थिंग क्यों करते हैं? वाई अर्थिंग, क्योंकि जो चार्ज है वो अगर इंस्ट्रूमेंट पे आ गया, आपके फ्रिज कूलर के ऊपर टच हो गया कहीं से वो, और चार्ज उसके ऊपर आ गया और आपने उसको खोला, तो यू विल बी इलेक्ट्रीफाइड, यू विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो अर्थिंग का मतलब वो चार्ज अर्थ में चला जाएगा। अर्थ इज ए ह्यूज रिजर्वायर, तो इसलिए ग्रीन कलर की वायर यूज करते हैं, बट इसको यूज नहीं करते। आई गिव एन एग्जांपल, मेरे को अभी जस्ट रिमाइंड हुआ है, एंड इट हैज बीन ए ट्रेजेडी। अपने इसी गांव के अंदर देयर इज ए टेंपल, शिव मंदिर, और आई वाज टीचिंग इन रोहतक, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट वो यहाँ का इसी गांव का, उससे ये फैक्ट है, ये ट्रेजेडी है। देखो ये डेली लाइफ से रिलेट कर रहा हूँ इस विषय को। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है, तो व्हाट हैपेंस, वो इलेक्ट्रिसिटी आकाश में जनरेट होती है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एयर आयनाइज हो जाएगी, तो दैट चार्ज विल मूव टुवर्ड्स ग्राउंड। नाउ वी हैव टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दैट चार्ज, वी हैव टू सेव आवर बिल्डिंग्स। तो मंदिर के ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं हम पिन पॉइंट पे, गुरुद्वारे मंदिर पे, तो वहां भी एक ऐसा लगा हुआ था। तो उसके ऊपर क्या हुआ, वो चार्ज डेवलप हो गया, उसने चार्ज को स्टोर कर लिया। उसका जो एक्शन है, एक्शन ऑफ डिस्चार्ज, उसमें चार्ज अक्यूमुलेट हो गया वो। बट द मैसन, मिस्त्री जिसने मंदिर बनाया, हु कंस्ट्रक्टेड द टेंपल, वाज नॉट अवेयर ऑफ द साइंस, उसको साइंस की पता ही नहीं थी, और उसकी इग्नोरेंस के कारण किसी की जान चली गई। और वो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ तुम्हें आज। वो हुआ क्या, दिस इज ए फैक्ट फॉर दैट। व्हाट हैपेंड, शिवरात्रि वाले दिन समवन आस्क्ड हिम, आप बेटा प्लीज इस पे चढ़ो और इस फ्लैग को ठीक कर दो। ये फैक्ट है। वो फ्लैग के ठीक करने के लिए उस पे चढ़ गया, और वो जो लाइटनिंग कंडक्टर ऊपर जो लगा होता है, उसने उसको टच किया, चार्ज उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो चुका था, वो उसकी बॉडी पे आया, ही गॉट इलेक्ट्रीफाइड, ही डाइड ऑन दिस। तो अगर उसकी प्रॉपर अर्थिंग की होती, अर्थिंग मींस वो चार्ज ग्राउंड पे चला जाता, तो दैट बिल्डिंग वाज सेफ और उसकी लाइफ भी सेफ। तो अर्थिंग का कितना रोल है। घर के अंदर भी जो बड़े अप्लायंसेस हैं, हीटर है, गीजर, कूलर, उसमें तो स्विच आता है वो 3 वाला, बाकी में नहीं आता, जबकि वो हर एक में चाहिए।
What is the difference between this source of current and electricity जो घर में यूज कर रहे हैं? What is the difference? This is DC direct current and that is AC. इसको हम टच कर ले कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इसको मुंह से इसको भी नहीं करना, जीभ से इसको भी नहीं करना. That is very sensitive and pinpointed. जितना भी कहीं pinpointed एज होगा वहाँ पे करंट जल्दी कैच होता है. एक्शन ऑफ कोरोना डिस्चार्ज आप बोलते हो. तो अब मैं इसमें दिखाता हूँ. इज देयर एनी करंट? तो आई एम जस्ट टचिंग इट विद द अगेन क्वेश्चन यू प्लीज कम. You just hold this. I don't know how many of you will be able to see the deflection. The needle will deflect when I will touch it with this. It's very easy. You might have seen it in advance. I will discuss some other points also. If I reverse the terminals, the direction of current is changing. Direction of current is reverse. Deflection अगर left था तो right हो जाएगा, right था तो left हो जाएगा. Okay. This was just to convince you. This was just to convince you that this is the source of current. लेकिन ये DC है. इसमें direction change कब हुई? जब मैंने manually change किया. और AC के अंदर automatic change होता है. जो घर में यूज करते हैं, that is of higher voltage. ये only 9 वोल्ट है तो वो 220 वोल्ट है. और उसकी भी पीक 311 वोल्ट तक जाती है. और उसमें डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज होती है. एक बार इधर तो एक बार इधर. Some student ask me, सर अगर AC है, पंखा AC में चल रहा है, एक बार ऐसे ऐसे क्यों नहीं घूम रहा? But he was not aware of the principle. क्या principle है? अब ये इलेक्ट्रिक मोटर है. This is fan is also an electric motor. I can show you the motor also. An electric motor. जैसे देखो, अब मैं इसको अगर इससे जोड़ दूंगा तो ये इलेक्ट्रिक मोटर बन जाएगी. अभी जस्ट दिखाता हूँ. बहुत ही सिंपल है. इसको टच कर दिया. अब इसका प्रिंसिपल अलग है. मैं इसको टच कर रहा हूँ. Anybody can try there. आप करते रहो तब तक. You can try. आप कनेक्ट करो, चल पड़ेगी फिर दिखा देना. ठीक है? It will save my time. Okay, I have limited time, so that's why ये चलेगी. तो I was mentioning कि ये मोटर है. इसका प्रिंसिपल अलग है. वो क्या है? जब भी किसी कॉइल से करंट फ्लो करेगा और वो कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी तो what will happen? That will deflect. That will experience a torque. और वो घूमना शुरू कर देगा. और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसका प्रिंसिपल अलग है. It is quite different. इसको सही से कनेक्ट करो ये चलेगी. ठीक है? तो उसका प्रिंसिपल अलग है. वो प्रिंसिपल क्या है? अभी तो हमने फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की. क्या हम ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? इन दिस क्लासरूम एट दिस स्पॉट कर सकते हैं. उसके लिए मेरे पास कॉइल्स है. जैसे ऐसे कॉइल्स है. ये कॉइल है. इसको अगर मैं उसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ूंगा ऐसे और इसके अंदर एक मैग्नेट मूव करवाऊंगा ऐसे मैग्नेट मूव करवाऊंगा तो इसमें करंट आ जाएगा. अब मैं इसको शो नहीं करूंगा. रीजन इज दैट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सी. लास्ट वन फिर वो जो है उनको दिलचस्पी रहेगी. तो इसके लिए मेरे पास आई हैव अनदर ऑप्शन. ये है एक रेडीमेड कॉइल है. यू कैन सी ये रेडीमेड कॉइल है. इसमें कोई बैटरी नहीं है. देयर इज नो बैटरी एट ऑल. यू कैन सी फ्रॉम बिहाइंड. देखो यहाँ कोई बैटरी नहीं है. ठीक है? और ये 2 LED लगी हुई है इसमें. बट आई हैव मैग्नेट आल्सो. इसके साथ ये प्लास्टिक की रोड है. इसके साथ मैग्नेट लगाया हुआ ताकि इसमें ये घुस जाए. अब मैं इसको अगर जस्ट इसके अंदर जस्ट प्लेस करता हूँ, नथिंग विल हैपन. कुछ नहीं होगा. लेकिन मैं इसको स्पीडली मूव करवाऊंगा ऐसे. देखो LED आर ग्लोइंग. देखो जल रही है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट. तो दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज द प्रिंसिपल. इलेक्ट्रिक मोटर का जनरेटर का प्रिंसिपल क्वाइट डिफरेंट है. 10th क्लास में लिसन केयरफुली. आपके सिलेबस में भी है. इलेक्ट्रिसिटी का यूज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. इसका प्रिंसिपल है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नोट इट डाउन. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर? दैट इज EMI. और ये EMI मैंने करके दिखाया. इसको आप कॉइल से भी कर सकते हो
कॉइल से करोगे मैग्नेट मूव करवा के। अब पॉइंट क्या है, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मोटर का प्रिंसिपल है, ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन हमने उस इलेक्ट्रिसिटी को कॉइल के अंदर से मूव करवाना है और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे कॉइल को, दैट विल स्टार्ट रोटेटिंग। घूमना नहीं क्या शुरू दिखाओ ना फिर। देखो ये घूम रही है, तो दिस इज सिंपल मोटर। तो इसमें बेटा क्या है, इसके अंदर भी कॉइल लगी हुई है। वो कॉइल जो है उसके अंदर से करंट, वो कॉइल ऐसे सेट कर सकते हैं उसको, अगर एसी से भी करना चाहें तो ये नहीं कि एक बार ये ऐसे घूमे एक बार ऐसे, उससे कोई लिंक नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें करंट की डायरेक्शन से लेफ्ट हो चाहे राइट, वो हीट अप होना है। इलेक्ट्रिक बल्ब क्यों जलता है, क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ये क्यों घूमती है, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है। करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो घूमेगी, टॉर्क लगेगा। उसको हम एसी से भी घुमा सकते हैं, डीसी से भी घुमा सकते हैं, तो देयर इज नो सच थिंग। तो ये ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड का और भी हम बहुत सारी चीजें हैं। आई हैव मैनी एक्सपेरिमेंट तो मेरे पास बहुत हैं, लाइट से रिलेटेड भी हैं। और डेंसिटी, किसी चीज की डेंसिटी निकालनी है, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? ये तो बेटा फॉर्मूला है, ये आपने डेंसिटी को तो नहीं समझा, डेंसिटी है ये जस्ट फॉर्मूला रट लिया आपने, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी है क्या, क्यों जरूरत पड़ी इसकी डेंसिटी? होता क्या है, ये प्रिंसिपल है किसी भी चीज का, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस हैज सम मास, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखा होगा एलिफेंट है और एंट है, एंट का जो मास है वो कम है, एलिफेंट बहुत हैवी है, मास ज्यादा है। स्पेस कौन सा ज्यादा घेरेगा? लेकिन कुछ की ऐसी नेचर है, जैसे कॉटन है, कॉटन का क्या है, मास कम है, स्पेस ज्यादा घेर रहा है। लेकिन दूसरी कॉटन की भी यही नेचर मिलेगी, एवरी काइंड ऑफ कॉटन की सेम नेचर मिलेगी कि वो इतने मास की इतना स्पेस घेरेगी। जैसे आयरन है, उसकी नेचर अलग है, वो कम स्पेस में ज्यादा मास होता है। इट मींस every substance is associated with a density. What is the density of water? Follow. Density of water you must know, that is 1000 kilogram per meter cube या 1 gram per kg. Okay, this is the density of water. Now, anything having density more than this will sink in the water. Anything having less density than that will float. Okay. So I have this cylindrical shape, you can say made up of iron. Iron का है ये पानी में डूबेगी, तैरेगी, can be floated in water. क्या इसको तैरा सकते हैं? कैसे बताओ? सरफेस टेंशन इतना नहीं होगा कि इसके वेट को वो बैलेंस कर पाए। मेरे पास ये वेट भी है, इसका वेट बता देता हूँ अभी। ये मेरे पास स्केल है, सिंपल है ये चीजें, कोई ज़्यादा नहीं है, वेट तो कोई भी ये जैसे इसका वेट बता देता हूँ मैं इसको। ये 0 0 इस है, ठीक है। ये 0 0 मैंने ये रख दिया इसके ऊपर। व्हाट इज द वेट ऑफ दिस? कितना देखना, 18 पॉइंट दिस इज 18.8। ओके, अब इसका याद रखना आपने, इसकी डेंसिटी अभी निकाल के दिखाऊंगा आपको। दिस इज 18.8 ग्राम। ओके, अब ये कितना जो है स्पेस ले रही है, स्पेस कितना घेरा, बीच में तो एम्प्टी है ये, तो हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम? इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पहले क्या करेंगे, हम इसकी हाइट निकालेंगे, इसका डायमीटर निकालेंगे, एक आउटर और एक इनर। आउटर में से इनर वाला माइनस कर देंगे तो
खाली है, ठीक है। तो वॉल्यूम तो ज्यादा है और मास कम है। यहाँ वॉल्यूम सेम है लेकिन मास बढ़ गया, तो डेंसिटी इसकी क्या होगी, बढ़ गई, ये डिप हो जाएगी। अब आयरन जो है, आयरन तो सिंक होता है, तो ये क्या प्रोवाइड कर सकता है, यस कर सकता है। कब, कंडीशन इज, रूल इज, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड। जैसे मरकरी है, मरकरी की डेंसिटी वाटर से 13.6 टाइम्स ज्यादा होती है। यही अगर जो आयरन है इसको पानी में डालेंगे तो डूब जाएगा, और इसी चीज को मरकरी में डालेंगे तो तैरेगा। तो क्या वहां फिजिक्स फेल होगी, नहीं, फिजिक्स फेल नहीं हुई, रूल वही है, लेकिन आपने मटेरियल चेंज कर दिया तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा डेंसिटी जिसकी होगी तो थ्रस्ट क्या करेगा, ये देखो बेटा, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इसके अंदर लपेट देता हूँ। इसको इसके अंदर मैं लपेट देता हूँ इसको। इससे इसका वेट बढ़ा है घटा, इंक्रीज और डिक्रीज, बेटा इस पे अगर रैप किया है मैंने तो वेट भी इंक्रीज, वेट तो बढ़ा है ना, 18 पॉइंट जो था उससे ज्यादा है, तो इजीली डूबेगी, डूबनी चाहिए। अब इसको बांधना पड़ेगा। इसको एक बार जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आपकी करवा देना ये बेटा मैंने बांध दिया इसको, और इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ अभी, देखना। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगा, ये देखना, ये अगर डुबोना चाहूंगा ना जबरदस्ती तो ऊपर आ रही है, ये देखो मैं इसको नीचे छोड़ रहा हूँ, ऊपर आ रही है। वही जो है वही आयरन अब तैर रहा है और वही आयरन पहले डूब रहा है। रीजन इज दैट हमने इसकी डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया। कैसे डिक्रीज किया, हमने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, मास वही रखा, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। यू गो फॉर स्विमिंग, यू टेक ट्यूब्स लेते हो तो उसमें यही तो है, ट्यूब्स में मास तो कम है उसका लेकिन वॉल्यूम ज्यादा, स्पेस ज्यादा घेर रही है, तो डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी 1 ग्राम पर cc जब कम होते ही वो तैरेगी, बाकी होगी वो डूब जाएगी। दैट्स व्हाई इतना हैवी शिप जो है वो तैरता है और एक नीडल जो है वो डूब जाती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो लाइट से रिलेटेड बताता हूँ आपको। ये शेप तो मैंने बता दी थी, दिस इज सर्कुलर। अब इसके अंदर हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन लाइट, देखते हैं कभी हैवी से सीधे में इजीली दिख जाते हैं वो। अगर इसको सनलाइट में ले जाओगे तो 7 कलर तो बहुत ही इजीली दिखते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि क्या लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, डू यू थिंक। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मान लिया हमारे पास एक कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, एनी सोर्स ऑफ लाइट, जैसे मान लिया ये लेजर लाइट है सपोज मेरे पास, अभी लेजर लाइट यहाँ पे ये रहा, ये लेजर लाइट है, इजीली अवेलेबल इन मार्केट, कहीं भी ले सकते हो। ये सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास, और तो यहाँ से लाइट रेडिएशन चाहिए, ओके। अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रख दूँ, एक ऑब्स्टेकल कोई, और पीछे एक स्क्रीन रख दूँ, व्हाट विल हैपन, लाइट विल नॉट पास थ्रू इट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे हम मटेरियल्स को कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो लाइट के बेस पे कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो मैंने ये ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, लाइट विल नॉट पास थ्रू। तो यहाँ से क्या होगा, लाइट ऐसे जाएगी यहाँ पे। तो दिस रीजन शुड बी डार्क और ब्राइट।
ये डार्क होगा, श्योर होगा। बट इफ आई डिक्रीज द साइज ऑफ दिस ऑब्स्टेकल, अगर मैं इसका साइज डिक्रीज कर दूं, छोटा छोटा जो बहुत ही स्मॉल ले लूं, बहुत ही स्मॉल साइज, व्हाट विल हैपन? टू योर सरप्राइज, टू योर कंप्लीट एस्टोनिशमेंट, दिस रीजन विल बी कंप्लीटली ब्राइट, जो कि पार्शियली ब्राइट हो सकता है लेकिन कंप्लीटली ब्राइट हो जाएगा। यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट आ जाएगा बीच में। इट मींस लाइट बेंड एट दिस, ऐसे यहाँ से बेंड हो जाती है, उसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर मैं इस लेजर लाइट है, ये लेजर, इसको इसमें प्रिज्म पे मारूं ऐसे, जैसे इसका ये स्पॉट जैसे मारूं हो गया, देखो उसमें वॉल पे दिख रहा है ना स्पॉट, ठीक है। और इसमें अगर ये प्रिज्म रास्ते में हटा दूंगा तो इसका पाथ चेंज हो जाएगा, ये कहीं और जाएगा, वहां से हट हटा देता हूँ तो वही आ जाता है, लगा देता हूँ तो कहीं साइड में चला गया, लाइट कैन नॉट सी, लेकिन कहाँ गया वो तुम ढूंढो, कहीं ना कहीं गया, दिख रहा है कहीं, काफी बेंड हो जाता है, अपना रास्ता बदल लेता है। माय पर्पस इज टू टेल यू दिस कैन चेंज द पाथ ऑफ लाइट। बट अगर यही चीज मैं ग्लास स्लैब से करता हूँ तो नहीं होता, ग्लास स्लैब से नहीं होता, प्रिज्म से हो जाता है, क्यों? व्हाट इज द रीजन? बताओ। यही चीज ग्लास स्लैब के क्रॉस सिर्फ लेटरली शिफ्ट होते साइड में, और वो भी अगर सीधा मारूंगा तो बिल्कुल नहीं होगा। स्टेट अगर ऐसे लगाऊंगा उसके ऊपर तो सीधे जाएंगे बिल्कुल, और इसमें अगर स्टेट डालता हूं तो ये चेंज होगी, यहाँ से अपना पाथ चेंज होगी। व्हाट इज द रीजन? एक और चीज बताता हूँ इसके साथ। मेरे पास ये कुछ ऐसे ये व्हाट यू कॉल दिस, ये बेसिकली जो है ना, ये ड्राइंग रूम में यूज करते हैं, किसी उससे उसके ऊपर लगा के ऐसे, जैसे मैं इसको अगर इसके ऊपर रख दूं तो ये ऐसे लाइट जल जाएगी। अभी मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे यहाँ पे ये लाइट जो है तो स्ट्रेट जा रही थी, मैं इसके ऊपर लगाऊंगा यहाँ पे। ये ऐसे डार्क रूम का एक्सपेरिमेंट है, उसमें पता लग रहा है सही है। मैंने यहाँ देखो लाइट जो है अपने अलग अलग पाथ पे जा रही है। अब जो भी इसका पाथ होगा, इधर भी जा रही, इधर भी, मल्टीपल डायरेक्शंस। वही लाइट हटा दे तो ये सीधा जा रही थी, यहाँ मल्टीपल डायरेक्शंस। अगर मैं इसको ऐसे भी बेंड करूंगा तो लाइट इधर जाएगी, इसको ऐसे बेंड करूंगा तो लाइट इधर जाएगी। तो लाइट इज कैरीड अलोंग दिस फाइबर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है? सिंपल एक ग्लास ट्यूब होती है, बहुत ही थिन ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास, लेकिन इतनी थिन है कि इसका जो प्रिंसिपल है वो ये ऐसे मान लिया फाइबर है ऐसे। अब इसकी जो भी शेप है उसी के अनुसार लाइट इसके साथ चलेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। डू यू नो 12th क्लास के स्टूडेंट, you have to tell the answer, what is the principle of this optical fiber? Yes, total internal reflection. अब ये total internal reflection क्या होता है? What is difference between simple reflection and total reflection? अगर हम लाइट मिरर के ऊपर मारते हैं तो वो वापस आती है, that is reflection। अगर लाइट हम इस पे प्रिज्म पे ही मारे मान लिया और वो कैसे भी वापस आ जाए एनी वे, बिना इसकी मिरर बनाए, इसको पॉलिश नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, फिर भी अगर वापस आ जाती है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट इसके अंदर एंटर करती है यहाँ पे, और ये इतनी थिन है, बहुत ही थिन है कि यहाँ पे अगर एंटर कर भी गई तो यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ऑलमोस्ट होगा 150 डिग्री, क्योंकि इतनी थिन है ये। अगर यहाँ से एंटर करेगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 150 के अराउंड होगा, मे बी 180 के आसपास भी हो सकता है, लेकिन 150 है तो लाइट विल नॉट मूव इन दिस आउटर पार्ट, उसे बाहर नहीं निकलेगी, बिकॉज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और ये उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी और ये ठीक है। तो दिस लाइट कैन बी टेकन 1000 किलोमीटर्स। कैसे? हम इसका यूज कहाँ पे है? एक तो एंडोस्कोपी टेस्ट होता है, मान लिया किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर इंसर्ट द ट्यूब थ्रू द माउथ with the help of a camera also,
और अंदर हम सारा देख सकते हैं। मान लिया किसी का सिविल ब्लॉक हो जाता है, जैसे जो होता है ना, तो उसको कैसे करोगे? क्या डंडे से साफ करोगे? उसमें तो जिगजैग है आके, कैसे साफ करोगे? यू कैन यूज योर साइंस। यू नो वाटर हैज ए प्रेशर। अगर वाटर से फिल कर दो, उसको फिल कर दो और ऊपर से वाटर से प्रेशर मारो, तो वाटर तो अपनी शेप ले लेगा जैसे भी, तो वो जो प्रेशर आपका दैट विल ट्रांसमिट टू द अदर एंड, चाहे वो 2 किलोमीटर दूर हो, वहां भी वो फोर्स चला जाएगा। और वैसे हम फोर्स नहीं ले जाएंगे। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ योर साइंस। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था, ये ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन, एक तो एंडोस्कोपी। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मान लिया मैंने, आई थिंक एक्सपेरिमेंट तो देखो बहुत ही ज्यादा है, ये इतना कवर नहीं हो पाएगा, तो मैंने ऑप्शन बताया दर्शकों वो कर सकते हो। आई हैव लोडेड सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑन द यूट्यूब चैनल आल्सो। यू कैन रिमेन कनेक्टेड विद मी, यू कैन आस्क एनी ऑफ योर डाउट, बिकॉज दिस इज माय विलेज एंड आई एम रेडी टू गिव यू द सर्विसेज एनी time, 24 hours. So, but there should not be any misconception related to physics. Like you might have misconceptions. If I release some object from the same height, which one will reach the ground first? Some will say why this heavier will reach the ground first. No, both will reach the ground at the same time. But you are also right. Practically in your daily life, you see that heavier objects reach the ground first. Can you give me your book? Can I remove one page? So you see in your daily life, you are also right. Student never tell a lie, so that's why. But reason is something else. You don't know the reason. That's why you are misguided. So I explain you that a point of case. ऐसा ना हो आपके काम करें। ये देखो, अब मैंने इसको which one is heavier? This is heavier, this is lighter. मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ सेम हाइट से। You see which one will reach the ground first? देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ वही कॉन्सेप्ट हुआ जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हमने यूज किया था। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ये जो बॉडी है एयर के अंदर उतर रही है। एयर इज आल्सो ए फ्लूइड, बट इज फ्लूइड व्हिच कैन फ्लो। लिक्विड एंड एयर बोथ कैन फ्लो। तो ये लिक्विड, इसके लिए एयर एक लिक्विड की तरह ही है, उसके अंदर इसको अप थ्रस्ट मिल रहा है, उससे इसका टाइम इंक्रीज हो गया। अब मैं इसी चीज को इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है, इसको इसके ऊपर रख दिया और मैंने छोड़ दिया। सेम टाइम पे दे आर रीचिंग द ग्राउंड एट द सेम टाइम। अब कोई डिफरेंस नहीं आया। तो इट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। यू नो द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड। जैसे मान लिया मैंने h हाइट से कोई चीज छोड़ दी, मान लिया आपको कुएं की डेप्थ बतानी है। यू गो फॉर इंटरव्यू और आपसे पूछ ले कि भाई बताओ कुएं की डेप्थ, आपने उसके कुएं के अंदर नहीं उतरना, आपके पास कोई रोड नहीं है, हाउ विल यू फाइंड द डेप्थ ऑफ द वेल? तो सीधा आपके पास घड़ी है, एक कंकर उठाओ और उसके अंदर डाल दो। कंकर कितने टाइम में नीचे पूछेगा, यू जस्ट नोट डाउन द टाइम एंड यू यूज द फार्मूला s is equal to half ct square and that will be you can calculate easily, टाइम निकल जाएगा। ये बॉल मैंने ऊपर उछाल दी यहाँ पे, ठीक है, तो बताओ ये कितने टाइम में दोबारा मेरे हाथ में आए? अगर मैंने 60 की स्पीड से उछाली तो कितने टाइम में आए? अब ये फॉर्मूले रट्टाफिकेशन के नहीं है, ये कॉमन सेंस के हैं कि जो ग्रेविटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनीबॉडी कैन टेल मी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस। ठीक, आपने रट लिया कि 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसकी सेंस क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल रीजन ऑफ सेइंग दिस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? इसको मैं डिवाइड करता हूं दो पार्ट्स में, 10 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। समझ रहे हो
अपॉन सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जो स्पीड है वो 10 की चेंज होगी। अब 60 से फेंका तो 1 सेकंड के बाद कितनी स्पीड होगी? 50। नेक्स्ट सेकंड के बाद 40। तो जीरो स्पीड जब होएगी तो मैक्सिमम हाइट पे होगी है, तो कितने सेकंड में ऊपर गई? 6, और 6 वापस 12 सेकंड। अब 100 की स्पीड से अगर कोई चीज फेंकेंगे तो 1 सेकंड में आंसर बताओगे। हाउ मेनी सेकंड्स इट विल टेक टू कम बैक? 20 सेकंड। 100 वाली की सेंस आएगी 100, 90, 80, 70। तो कॉमन सेंस है, हर सेकंड में 10 की स्पीड घट रही है। अगर 30 से फेंकेंगे तो 3 सेकंड में 0, फिर 3 सेकंड में, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये कॉमन जो है हम यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक वैसे एक्सपेरिमेंट बहुत है। ये स्प्रिंग बैलेंस मिल गया मेरे को, ये स्प्रिंग बैलेंस। एक तो होता है सिंपल बैलेंस जिससे मास मेजर करते हैं, एक होता है स्प्रिंग बैलेंस जिससे वेट मेजर करते हैं। क्योंकि इसमें जो ग्रेविटी है वो एक ही लाइन पे है, इसको कोई कैंसिल करने वाला दूसरा नहीं है। जो फिजिकल बैलेंस है उसमें क्या होता है, तराजू ऐसे होती है, बीच में यहाँ फिक्स कर दिया हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, हमने एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स दे दिया गिरेगी। अब जिस तरफ मास ज्यादा होगा उसी तरफ ये नीचे दबेगी, नीचे जाएगी, टॉर्क ज्यादा होगा। तो इस तरफ ज्यादा होगा मास तो इस तरफ जाएगी। तो इससे मास को मेजर कर सकते हैं। तो अगर फिजिकल बैलेंस यूज करेंगे तो हम चाहे नॉर्थ पोल पे सोना खरीदें, चाहे हम इक्वेटर पे गोल्ड परचेज करें, मास कोई चेंज नहीं होगा। और लेकिन हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को ये कहते हैं बेटा जो इक्वेटर है उस पे जी की वैल्यू कम होती है और नॉर्थ पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है। सम स्टूडेंट पॉइंटेड आउट सर फिर तो गोल्ड वहां से लो और यहाँ गोल्ड दे आओ, उसका वही मास थोड़ा चेंज होगा, मास विल रिमेन सेम, मास बॉडी का चेंज नहीं होगा, इट इज द ग्रेविटी। वही चीज वही बॉडी अगर स्पेस में है तो वो गिरेगी नहीं। यू माइट हैव सीन द वीडियो सुनीता विलियम, डू यू नो सुनीता विलियम एस्ट्रोनॉट नॉट, वो बिल्कुल जैसे हमने अब जैसे ये है यहाँ पे मेरे को डस्टर है, यहाँ छोड़ दूंगा मैं उसको, इसकी जरूरत नहीं, ये टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो आई कैन पुट इट इन स्पेस। पानी भी अगर पीना है तो वहाँ पे हम ऐसे नहीं पी सकते, ग्रेविटी, रोल ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है, ये सारी चीजें एंड बट दिस इज द बिगेस्ट फोर्स इन नेचर। तो बेटा टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, उसके लिए क्यूरियोसिटी आपकी तरफ से क्वेश्चन आए तो मैं उनका आंसर, ठीक है। तो बेटर है यू कैन आस्क एनी डाउट एंड आई कैन ट्राई एज मच एज पॉसिबल। अगर मेरे को भी नहीं आएगा तो आपके डाउट जरूर मैं दूर करूंगा, चाहे मेरे को एच.सी. वर्मा सर से वो उनके सॉल्यूशन पूछने पड़े, ठीक है। तो बट यू मस्ट बी क्यूरियस। डाउट अगर एक बेटर इट इज टू बी कॉल्ड फूल वंस देन टू बी कॉल्ड फूल फॉरएवर। डाउट अगर है तो उसी टाइम पे पूछ लो, इट हैपेंस। आई नो द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट, वो सोचते हैं ये क्या सोचेगा, इसको इतना आसान सा भी नहीं आता, नहीं, उसको उसी टाइम पे सॉल्व करो। आई टेल यू द रीजन, माय ओन चाइल्ड हैड ए डाउट। अभी जो है 2-3 साल पहले उसने ये पूछा, पापा ये बताओ ये वोल्टेज जो है हाई वोल्टेज पे लेके आते हैं और इसको लो वोल्टेज पे तो लाया जा सकता है। तो कहता मैंने टीचर से क्लास में स्कूल में पढ़ता था, मैंने वहाँ भी पूछा तो सब इतना देते हैं इसका आंसर कि ये होता है पावर का फॉर्मूला होता है V²/R और पावर का फॉर्मूला I²/R भी होता है, और एक तीसरा फॉर्मूला VI भी होता है। 3 फॉर्मूले हैं पावर के। यू नो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट रेजिस्टेंस, ओके इट्स ओके। अब होता क्या है, हमने पावर लेके आनी है बाखरा बांध से, वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एट बाखरा डैम, वहां पे हम टरबाइन के ऊपर पानी गिराते हैं। पानी का रोल सिर्फ टरबाइन को घुमाना है, ये नहीं कि टरबाइन से कुछ बिजली से पानी से बिजली निकाल दी और हमने पानी में कुछ दैट इज ओके। तो सिर्फ जस्ट टू मूव द टरबाइन, यू कैन मूव दैट टरबाइन विद द हेल्प ऑफ विंड आल्सो, तो आपका विंड पावर प्लांट बन जाएगा। तो टरबाइन को अगर स्टीम से घुमाएंगे तो आपका थर्मल पावर प्लांट बन जाएगा, और उस टरबाइन को अपने हाथ से घुमाएंगे तो तो मेन है टरबाइन को घुमाना। तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन उसको हाई वोल्टेज पे फिर हम ट्रांसमिट करते हैं। तो ठीक है, पावर हमने भेज दी है, मान लिया 10 की पावर 6
थिन तो कर सकते हैं, अलग चीज है। तो इसमें जो है थिक करेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा, फिर वो ठीक रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बट दैट विल बी कॉस्टली। तो ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, तो करंट डिक्रीज हो गया, तो पावर डिक्रीज होगी, तो वेस्टेज कम हो जाएगी, जो हीट वेस्ट हो रही है वो कम हो जाएगी। अब उसका क्वेश्चन यही था उसका बच्चे का कि फिर ये फार्मूला क्यों नहीं लगाया, व्हाई दिस फार्मूला इज नॉट यूज्ड। फार्मूला तो ये भी है, हाई वोल्टेज पे अगर लेके आ रहे तो वेस्टेज तो बढ़ गई यहाँ पे, ये क्यों नहीं। तो यू थिंक ओवर इट, आई विल रिप्लाई इट, ठीक है। बट उससे पहले इजीली मैं सीधा रिप्लाई करूंगा तो क्या होगा, यूर थिंकिंग प्रोसेस विल स्टॉप, ठीक है। तो आप इसको सर्च करो, डिस्कस करो और जानकारी लो। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, ये नहीं कि दिस इज नॉट द एंड। बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ में क्यूरियोसिटी होती है, तो स्टार्ट डूइंग ऑल दिस। आपसे आप कीन ऑब्जर्वर बनो, अपने आप जो है आपको इजी होता चला जाएगा। और जैसे सर ने बताया था, जो फिजिक्स इसकी स्ट्रॉन्ग है उसको प्रॉब्लम आएगी नहीं डेफिनेटली। अदर सब्जेक्ट उसके पास लॉजिक है, वो सारी चीजें सोच सकता है। इवन मेरे को फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने को तो मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं इजी पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री में मैं हिस्ट्री को अच्छे ढंग से पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि उसमें एक एबिलिटी है सोचने की। वो आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, आई एम टेलिंग द फैक्ट्स, ये फैक्ट है। तो इसलिए साइंस स्टूडेंट्स, यू आर लकी कि ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड स्टूडेंट एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। सो विद दिस वर्ड्स आई वाइंड इट अप एंड आई एम गिविंग माय YouTube channel name also, you can note down, that is JS Balara at the rate of physics made easy. You can subscribe this channel, physics made easy, and I will say you must subscribe the channel so that you can take benefit if you are really interested to clear your doubts. I will be available, and for any topic which is wanting you, I can make different video on that topic, just like special on friction, special on quantum. With this, I again thank director sir, all these staff members, and you discipline very patiently. Thank you very much. मुझे याद किया कि बलारा साहब आप यहाँ पैदा हुए हो, और मैंने वो एक कविता है मातृभूमि, 2 लाइनें उनकी उस कविता की मैंने बोला, तो बलारा साहब ने बड़ा इजीली उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि जी चलो। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये आप और हम सबका घर है। कविता की जो लाइनें थी वो मातृभूमि में आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जिसकी रच में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। तो बलारा जी को मैंने याद दिलाया, मैंने कहा कि जी मोस्ट वेलकम, आप रेगुलर यहाँ विजिट करते रहें, गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप विजिट करें। तो इन्होंने बताया कि देखिए मैं प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेशन में रखूँगा, और मेरा YouTube चैनल है, जो बच्चे बहुत क्यूरियस हैं और जिनको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रहती है तो वो मुझे फॉलो करें। जहाँ जैसा भी आपकी कोई दिक्कत रहती है आप उनसे शेयर करें, आपको सलूशन मीडिया जो है, सोशल मीडिया, उसके ऊपर जो YouTube चैनल के माध्यम से आपकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण ये करने के लिए कमिटमेंट की है। तो बलारा साहब का मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि आज इन्होंने बहुत बिजी शेड्यूल इनका रहता है और सरकारी तंत्र में भी रहे हैं, और एज ए पीजीटी फिजिक्स इन्होंने सरकारी स्कूल के अंदर सेवाएं दी हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र महसूस होता है कि इनका सरकारी तंत्र में रहते हुए फिजिक्स में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जहाँ जहाँ भी जिन बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है, काबिल तारीफ है।
ऊपर देख रहे हैं। तो मैं भी अपनी जो साइंस फैकल्टी है, चाहे वो 6th क्लास को पढ़ाने वाला हो या 12th क्लास को पढ़ाने वाला, ये टूल्स अगर हम क्लासरूम में लेके जाएं तो टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। और मेरे जैसा कोई सुस्त बैठा है उसके दिमाग में भी ये फिजिक्स घुसाई जा सकती है, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो प्रैक्टिकली अगर टीचर्स जो मेरे साथी खड़े हैं सुन रहे हैं, वो भी इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो एक बहुत बढ़िया सिस्टम में आप बच्चों तक पहुंच सकते हो, कुछ चीज बच्चों तक पहुंचा सकते हो। तो एक बार फिर से बरारा साहब अधिकार के साथ बरारा साहब को आपके सामने लाने के लिए सुन रहे हैं तो मैं तैयार रहूँगा। और सर का भी मुझे, मैं मानता हूँ कि कंसेंट मन और आत्मा से मिल रहा है मुझे कि कभी आपको हमें मायूस नहीं करेंगे। थैंक यू।